یسوع مسیح کے ابدی جلالی عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کو جہاں پر بھی جیسے بھی ان کو اپنے نام کے لیے کلام کے لیے صرف کرتا استعمال کرتا اور پھر اپنی منزل اپنے گھروں میں واپس پہنچا کر وہ اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے۔ تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں ساری ٹیم کے لیے، سارے بھائیوں کے لیے کہ وہ خدا کی خدمات کے لیے اپنی زندگیوں کو دے رہے ہیں اور خدا کے نام کے لیے خرچ ہو رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے ٹیم کے اندر، بھائیوں کے اندر یا میرے اندر، ہماری زندگی کے اندر اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو ہم بالکل ناقص ہیں، ہم خاک کی مانند ہیں اور ہمارے اندر کوئی صفت، کوئی حکمت، کوئی لیاقت، رفاقت، کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پسند کرے یا ہمیں کوئی لائک کرے یا ہمیں کوئی بلا کر عزت دے۔ اگر کوئی عزت کی بات ہے، اگر کوئی پسند کی بات ہے، اگر کوئی قدر کی بات ہے تو وہ صرف اور صرف ایک نام سے ہوتی ہے اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح اور اس کا کلام ہے۔ یسوع مسیح اور اس کا کلام ہماری عزت اور ہماری برکت کا باعث بنتا ہے۔ جو میں نے ایک دفعہ بات سنی، ایک خادم سے کسی نے پوچھا، آپ بائبل مقدس کو جگہ جگہ لیے پھرتے ہیں، اس گاؤں میں اس گاؤں میں لے کر پھرتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اصل میں اس کو لے کر نہیں پھر رہا، یہ مجھے لے کر پھر رہی ہے۔ تو بے شک خدا ہمیں اسیروں کی طرح اپنے لوگوں کو اس کلام کی منادی کے لیے جو بوجھ اس نے ہمارے اندر رکھا ہوا ہے اس کو نکال کر لوگوں کے اندر بکھیرنے کے لیے ہمیں لیے پھرتا ہے۔ تو کلام اقدس کو آج ہم سیکھیں گے ٹیم کے اندر کچھ اصولوں کے بارے میں۔ پولس رسول کا کرنتھس کی کلیسیا کے نام دوسرا خط، نویں باب کی 10ویں آیت سے لے کر پڑھیں گے، 10ویں سے آخر تک۔ جی، خداوند کے پوتر کلام میں یہ مرقوم ہے، بس جو بونے والے کے لیے بیج اور کھانے کے لیے روٹی باہم پہنچاتا ہے، وہی تمہارے لیے بیج باہم پہنچائے گا اور اس میں ترقی دے گا اور تمہاری راست بازی کے پھلوں کو بڑھائے گا۔ آگے آخر تک جی، اور تم ہر چیز کو افراز سے پا کر سب طرح کی سخاوت کرو گے جو ہمارے وسیلہ سے خدا کی شکر گزاری کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ اس خدمت کے انجام دینے سے نہ صرف مقدسوں کی احتیاجیں رفع ہوتی ہیں بلکہ بہت لوگوں کی طرف سے خدا کی بڑی شکر گزاری ہوتی ہے، اس لیے کہ جو نیت اس خدمت سے ثابت ہوئی اس کے سبب سے وہ خدا کی تمجید کرتے ہیں کہ تم مسیح کی خوشخبری کا اقرار کر کے اس پر تابعداری سے عمل کرتے ہو اور ان کی اور سب لوگوں کی مدد کرنے میں سخاوت کرتے ہو، اور وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں اور تمہارے مشتاق ہیں، اس لیے کہ تم پر خدا کا بڑا ہی فضل ہے۔ شکر خدا کا اس کی اس بخشش پر جو بیان سے باہر ہے۔ آمین۔ کلام اقدس کے پڑھے سنے سمجھے کھولے اور غور کیے جانے پر خدا کی برکت ہے۔ آمین۔ خدا کا شکر۔ میرے عزیزو، اس 10ویں آیت کے اندر ہم غور کرتے ہیں تو یہاں پر 2 قسم کے بیجوں کا ذکر ہوا ہے، اور یہاں پر بیان ہوا کہ پس جو بونے والے کے لیے بیج اور کھانے کے لیے روٹی باہم پہنچاتا وہی تمہارے لیے بیج باہم پہنچائے گا اور تمہیں اس میں ترقی دے گا۔ میرے عزیزو، پہلے جو بیج کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ مثال کے لیے استعمال ہوا ہے،
पहला जो बीज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो मिसाल दी गई है और कहा गया कि खेत के अंदर, ज़मीन के अंदर जो हल जोकर और ज़मीन को तैयार करता है, जब बीज बखेरता है तो जो खुदा उसको बीज मुहैया करता है, उसको बोने के लिए, उसको इस ज़मीन के अंदर बखेरने के लिए बीज मुहैया करता है, वही खुदा तुम जो खिदमतगार हो, तुम्हें भी वो अपना बीज अता करेगा। और फिर जब अपना बीज बखेरने के लिए, बोने के लिए अपने आसमान से तुम्हें देगा तो लिखा है और उसमें तरक्की देगा। आमीन। और खुदा दिन ब दिन तुम्हें इस बीज के अंदर और इस खुराक के अंदर बढ़ाता और सरफराज करता जाएगा। और मेरे अजीजों, मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि ये बात जो है यकीनन 100% बरहक और सच है, क्योंकि इस बात का तजर्बा हम कर चुके हैं अपनी ज़िंदगियों के अंदर और खिदमात के अंदर। तो खुदा यकीनन इस वादे को पूरा कर रहा है। जो खुदा खाने पीने के लिए तमाम ज़िंदगियों को खुराक मुहैया करता है और बोने वाले को बीज मुहैया करता है, यकीनन मेरे ज़िंदों जब हम यहाँ पर खड़े होते हैं तो हमारी नकले अकल जो है वो नाकिस है, हमारी जो सोचें वो नाकिस है, हमारे जहन के अंदर कोई ऐसी बात नहीं होती, कोई ऐसी हिकमत नहीं होती। लेकिन हम जब दुआ के अंदर झुक कर खुदा से बीज मांगते हैं, खुदा से कलाम मांगते हैं, खुदा से हिकमत मांगते हैं, शऊर मांगते हैं, तो वो अपना कलाम और अपना बीज हमारे उसी वक्त हमारे दिल और दिमाग पर और दिल पर उजागर कर देता है, नुमाया कर देता है, अता कर देता है और हम उस बीज को जिंदगियों के अंदर बखेरते रहते हैं। तो खुदा का बंदा कहता है जो खाने पीने के लिए देता है, जो बीज खेत में बोने के लिए देता है, वही तुम्हें भी अपना बीज जो तुम जिंदगियों के अंदर खिदमत के वसीला से घरानों के अंदर कलाम सुनाने की खिदमत कर रहे हो, वो भी तुम्हें बाकसरत देगा और इसमें तरक्की देगा। और हम ईमान रखते हैं कि खुदा ने हमें इस मामले में बीज बोने और बीज देने और कलाम सुनाने में तरक्की दी है। आमीन। मेरे अजीजों, लिखा है वही तुम्हारे लिए बीज बहम पहुंचाएगा और इसमें तरक्की देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा। अब रोज जब हम दुआ में झुकते हैं, फिर से दुआ में जब शफायत की दुआ करते हैं, तो यकीनन बहुत सारी ऐसी बातें, जो छोटी छोटी गलतियां, जो छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं जो नागवार होते हैं, तो खुदा फौरन से किसी ना किसी भाई के ज़हन पर डाल देता है कि ये बात, ये काम खिदमत के लिए नागवार है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का बंदा कहता है और तुम हर चीज को अफराद से पाकर सब तरह की सखावत करोगे और जो हमारे वसीला से खुदा की शुक्रगुजारी का बायस होती है। जब हम इसमें अफराद पाते हैं, जब ज़्यादा कसरत से कलाम मिलता है, जब कसरत के कलाम को ले लेते हैं और फिर ज़िंदगियों के अंदर बखेरते हैं, तो ज़िंदगियों के अंदर जब तसल्ली आती है और बरकत आती है और नजात आती है और फिर शिफाएँ आती हैं, तो इसके वसीला से पैदा क्या होता है, उस फल का नतीजा जो है, जब पौधे निकलते हैं तो उस पौधों के ऊपर फल जो लगता है वो घरानों और ज़िंदगियों के अंदर शुक्रगुजारी का। इस कलाम को सुनने के बाद, इसको अमल करने के बाद, इसको गौर करने के बाद, जब जिंदगियां इससे तसल्ली पाती है, शिफा पाती हैं, बरकत पाती हैं, तो वो शुक्रगुजारी का फल इसमें से निकल कर नुमाया हो जाता है। जिंदगियां शुक्रगुजारी करती हैं, घराने शुक्रगुजारी करते हैं। और आज इबादत में आने से पहले मुझे यहाँ पर एक गाँव है टुडियाँ की, वहाँ से एक भाई का फ़ोन आया। उन्होंने पिछले दिनों में ग्रुप के अंदर और हमें पर्सनल मैसेज के अंदर अपने भाई के लिए मैसेज किया, उनकी तस्वीरें सेंड की कि इनके लिए दुआ की जाए। उनका नाम भाई शबाज है, वो लाहौर के अंदर एडमिट हुए हॉस्पिटल के अंदर, वेंटिलेटर पर चले गए हैं और वहाँ पर भी डॉक्टरों ने कहा कि ये हमारे बस से बाहर है। मेरे अजीजों, जब दुआएं कही गई हैं, उनके लिए दुआ के अल्फाज निकाले गए हैं, जब सब ने दुआ की है उनके लिए, तो आज वो बता रहे हैं कि हम उनको घर में लेकर आ गए हैं और बोलना चलना शुरू कर दिया। और जो बाकी मादा उनके लिए लगा गई है, और उन्होंने किया कि बाकी जितनी भी बाकी मादा थोड़ी बहुत उनकी कमी बेशी रह गई है, मजीद आप उनके लिए दुआ करें ताकि उनको खुदा उठा कर भी खड़ा करे।
जिस चीज को डॉक्टर कह रहे थे कि ये नामुमकिन हो चुका है, ये बेबस, हम कुछ नहीं करते, वहां पर खुदा कहता है मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। मेरे चीजों, यहाँ पर खुदा का बंदा कहता है और तुम हर चीज़ को अफराद से पाकर सब तरह की सखावत करोगे, और जो हमारे वसीला से खुदा की शुक्रगुजारी का बायस होती है। अब वो घराना क्या कर रहा है? शुक्रगुजारी कर रहा है। हालेलुया। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए, खुदा की शुक्रगुजारी में बढ़ते हुए, खुदा के इन एहसानों का, इन बरकतों का, इन नेमतों शिफाओं की शुक्रगुजारी में बढ़ते हुए खुदा की तमजीद कर रहा है। मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि इस खिदमत के अंजाम देने से ना सिर्फ मुकद्दसों की एहतियाजें रफ़ा होती हैं, बल्कि बहुत लोगों की तरफ से खुदा की शुक्रगुजारी, बड़ी शुक्रगुजारी होती है। इसलिए कि जो नियत इस खिदमत से साबित हुई, उसके सबब से वो खुदा की तमजीद करते हैं। अब खुदा की तमजीद कैसे हो रही है? खादमों के वसीला से, टीमों के वसीला से और भाइयों के वसीला से। जब खिदमत अदा की जाती है, जब दुआएं की जाती हैं और खादमीन करते हैं, अपने घुटनों के बल होकर खुदा की ज़ुरी में सरों को झुकाते हैं, मिन्नतें करते हैं, शिफायत करते हैं, तो फिर शुक्रगुजारियाँ और खुदा की तमजीद नुमाया तौर पर ज़ुबानों पर आ जाती है कि हमारा खुदा मोज़ात करने में कामिल है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे हम चलकर पढ़ेंगे कि खिदमत जैसे हमें मिली है तो उसका हमने कैसे अदा करनी। यहाँ पर लिखा है 14वीं आयत के अंदर, और वो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं जब हम सारे मिलजुल कर यकजा होकर जिंदगियों के लिए, शिफा के लिए, बरकत के लिए, निजात के लिए दुआ करते हैं, रिहाई के लिए, तो फिर यकीनन हमारे लिए भी उनके ज़िंदगियों से दुआ निकलती है। यहाँ पर भी हम जब दुआ करते हैं, मैं शुक्रगुजारी करता हूँ भाइयों की, बहनों की, वो नाम लेकर दुआ करते हैं। मेरे घराने के लिए दुआ करते हैं, भाई शमसून के घराने के लिए दुआ करते हैं, भाई यासूफ के घराने के लिए, सब के लिए मिलकर दुआ करते हैं कि खुदा इन खादमों के ज़िंदगियों के अंदर, इनके घरानों के लिए भी बरकत चाहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि वो भी फिर तुम्हारे लिए दुआ करते हैं और तुम्हारे मुश्ताक हैं, ख्वाहिशमंद हैं। फिर वो ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं कि खुदा के बंदे फिर से आएँ, खुदा के बंदे फिर से हमारे घर में आएँ और आकर दुआ करें, और हमारी जो शुक्रगुजारियाँ मिलते हैं वो खुदा के ज़ुर में सुनी जाएं, और हमारे लिए खुदा की तमजीद हमारे मुंह से निकलती रहे। फिर वो मुश्ताक रहते हैं, वो ख्वाहिशमंद रहते हैं कि हम फिर से खुदा के खादमों को बुलाएंगे। जब खादमों को दोबारा से बुलाया जाता है, खादम चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर आ जाते हैं, तो वो क्या होता है? फिर शुक्रगुजारी के साथ जो अपने हजूर से खुदा के लिए अपनी मुट्ठी को खोलते हैं, तो फिर उन चीज़ों से, उन मुकद्दसों और खादमों की हाजतें, ज़रूरतें, आने जाने के जो तमाम मामलात हैं वो पूरे होते हैं। तो खुदा का बंदा कहता है इस तरह से खिदमत का बेहतरीन सिलसिला चलता है। मेरे अज़ीज़ों, कलाम अक़दस में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दूसरा थस्सलुनीकियों का खत, उसके दूसरे बाब की 13वीं आयत को पढ़ते हैं। जी पढ़ें। लेकिन तुम्हारे बारे में ऐ भाइयों, खुदावंद के प्यारो, हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तदा ही से इसलिए चुन लिया था कि रूह के जरिया से पाकीज़ा बनकर और हक पर ईमान लाकर नजात पाओ। आमीन। खुदा का बंदा यहाँ पर बयान करता है, लेकिन तुम्हारे बारे में ऐ भाइयों, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि ये शुक्र करना हम पर फर्ज है। और शुक्र करने के बाद लिखा है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तदा ही से चुन लिया था कि रूह के ज़रिए से पाकीज़ा बनकर और हक पर और ईमान लाकर निजात पाओ। अब खुदा का बंदा कहता है कि हम शुक्रगुजारी करते हैं तुम्हारे वसीला से, कि ऐ भाइयों, हर वक्त हम शुक्रगुजारी करते हैं कि क्योंकि तुम्हें खुदा ने इब्तदा ही से चुन लिया था। बाज़ दफ़ा
ہمارے گھرانے کے لوگ سوچتے ہیں، ہمارے بہن بھائی سوچتے ہیں، اور ہمارے محلے کے لوگ، کلیسیا کے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بندہ تو اس طرح کا رویہ تھا، اس کا یہ سلسلہ تھا، یہ اس طرح کے کام کرتا تھا، یہ برے گھنونے کام کرتا تھا، یہ شراب پیتا تھا، یہ نشے کرتا تھا، یہ بد کرداریاں کرتا تھا، یہ بڑا لاپرواہ تھا، اپنے گھر کی فکر نہیں کرتا تھا اور دنیا کی عیش و عشرت میں کھویا ہوا تھا۔ اب یہ کیسے خدا کا کلام سنانا شروع ہو گیا؟ اب یہ کیسے دعائیں کرنا شروع ہو گیا؟ اب یہ کیسے خدا کا جلال ظاہر کر رہا ہے؟ اس سے تو خدا کا جلال ظاہر ہے۔ وہ بڑی حیرانی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن خدا کا بندہ کہتا ہے یہ ان کی سوچ نہیں ہے، نہ تمہاری سوچ ہے، بلکہ خدا کی جو انتظام ہے اسی کا ہے، کیونکہ اس نے تمہیں ابتدا ہی سے چن لیا اور عین وقت پر تمہیں مقرر کر کے کھڑا کر دیا۔ اور لکھا ہے کہ کیوں کہ روح کے ذریعے سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ، جس کے لیے اس نے تمہیں ہماری خوشخبری کے وسیلہ سے بلایا تاکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کا جلال حاصل کرو۔ تمہیں خدا نے کیسے بلایا؟ خدا کا جلال حاصل کرنے کے لیے۔ تو میرے عزیزو، ہم بہت دنوں سے دوسری باتوں کے لیے سیکھ رہے تھے، آج ہم سیکھتے ہیں کہ جو خدمت گار ہیں ان کے لیے خدا کیسی باتیں کرتا ہے، خدا ان کو کیسے چلاتا ہے، خدا ان کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ تو ہم نے سیکھا کہ خدا جب اپنے لوگوں کو ابتدا ہی سے چن لیتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو اجاگر کر کے کھڑا کر کے دنیا کے سامنے آتا ہے اور پھر اس سے کام لیتا ہے، اور ان کا زور، ان کا توکل، ان کا بھروسہ اور ان کی قوت اور ان کی ڈھال اور ان کی سپر جو بھی ان کی زندگی سے نکلتا ہے، اگر کلام نکل رہا ہے تو یہ میری مرضی یا میری حکمت نہیں ہے، اگر روح کے وسیلہ سے آپ برکت پا رہے ہیں تو یہ میری حکمت نہیں ہے، خدا کی حکمت ہے، اور اگر دعاؤں کے وسیلہ سے، ساری ٹیم کی دعاؤں کے وسیلہ سے خوشخبریاں آ رہی ہیں اور خدا کی حضوری میں لوگ گواہیاں دے رہے ہیں تو وہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اسی خدمت کی وجہ سے جو ابتدا سے اس نے اپنے بندوں کو مقرر کر دیا تھا کہ میں فلاں گھرانے سے، ماں جی کے گھرانے سے، ارشاد بی بی کے گھرانے سے سمسون کو چنوں گا اور وہ میرے نام کے جلال کو ظاہر کرے گا، وہ میرے کلام کو استعمال کرے گا، اور میرے بیج کو جو میں اس کو دوں گا وہ بیج ایمانداری کے ساتھ ان کھیتوں میں جو تیار ہیں، جو اچھے کھیت ہیں، جو نمی رکھتے ہیں، ان کھیتوں کے اندر بکھیرے گا، اور ان کھیتوں کے اندر سے جب پھل نکلے گا تو وہ خوشخبری اور خدا کے جلال کا ظاہر۔ میرے عزیزو، کلام اقدس میں سے ہم سیکھتے ہیں، آج کل جو روپے پیسے کے لالچ کے اندر بہت سارے لوگ اس کو بے فائدہ استعمال کرتے ہیں، تو کلام اقدس میں سکھاتا ہے دوسرا خط کرنتھیوں کے نام 4 باب اور اس کی 16ویں آیت سے لے کر آخر تک۔ جی بس یہ پڑھیں 16 سے آخری تک، 16 سے 18۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس نے خداوند یسوع کو جلایا، دوسرا کرنتھیوں 4 باب، اس لیے کہ ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے، کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد اور بھاری جلال پیدا کرتی ہے، جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہے مگر اندیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ آمین۔ یہاں پر زبردست بات لکھی ہوئی ہے، اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے۔ ہوتا کیا ہے، اور پچھلے دنوں میں ہمارے ساتھ ایسا ہوا بھی ہے، بعض دفعہ میری مسز ہے یا بچے ہیں وہ بھی اکتا جاتے ہیں کہ ابھی دعا سے آئے ہیں اور پھر دعا کے لیے جا رہے ہیں، اور بعض دفعہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں بھائی کے گھر سے اتنی باتیں ہوئی ہیں، ایسے باتوں کو سننا پڑا ہے، اور
नाहक बातों को सुनना पड़ा है, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदा का बंदा कहता है कि हम फिर भी हिम्मत नहीं हारते। वजह क्या है कि हमारे अंदर जो काम कर रहा है, वो हमारे अंदर जो दिया जला हुआ है वो खुदा का जला हुआ है। हमारे अंदर जो रूह काम कर रही है वो हमारी अपनी नहीं, वो खुदा की रूह अपनी मर्जी से हमारी जिंदगियों को इस्तेमाल करती है और हम खर्च होते हैं, उसमें हमारी कोई भी मर्जी नहीं है। और हम जैसे वो हमें इस्तेमाल करता है, जैसे वो हमें आगाह करता है, हमसे बोलता है, हम उसी तरह अपनी जिंदगियों को इस्तेमाल करते जाते हैं। ज़ाहिरी तौर पर फैमिली को, हमारी को नहीं पता होता कि खुदा इनसे क्या कलाम कर रहा है, वो हमारी टीम को ही पता होता है, हमारे अंदर ही आपस में भाइयों को पता होता है। बहुत दफ़ा ना माँ जी को पता होता है, ना मेरे बच्चों को पता होता है, ना किसी और हमारे बहन भाई को पता होता है, लेकिन हमारे अंदर, हमारी टीम को उस बात का पता होता है कि रूह हमसे क्या फरमा रहा है और किस तरीके से फरमा रहा है और कैसे हमें चलने की तलकीन कर रहा है। तो वो मर्जी खुदा की होती है, हम उस मर्जी को बजा लाते हैं, हम बातें सुनना गवारा कर लेते हैं। लेकिन खुदा का बंदा कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है, हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि गो हमारी ज़ाहरी इंसानियत ज़ाहिल होती जाती है। पता क्या होता है, ज़ाहरी तौर पर क्या हो रहा है कि हम ऐसा करते हैं तो मुश्किल बढ़ रही है, नफ्सा नफ्सी बढ़ रही है, जहाँ ज़हन जो है वो किसी और तरफ जा रहा है, ये पता नहीं उनके पास लग गया, एक ही पता नहीं, अजीब ही काम हो गया। लेकिन वो कहता है कि हमारी ज़ाहरी इंसानियत तो ज़ाहिल हो रही है, मसला आ रहा है, ज़ाहरी तौर पर हमारे रिश्तों के अंदर मसला ज़ाहिर हो रहा है, लेकिन हम हिम्मत इसलिए नहीं हारे क्योंकि हमें जो पैगाम मिलता है वो खुदा की तरफ से मिलता है। फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज़ बरोज़ नई होती जाती है, अंदर से हम मजबूत होते जा रहे हैं। बाहर से हमें ऐसा मालूम होता है, हमें आती हैं बातें, लेकिन अंदर से हम मजबूत होते जाते हैं, अंदर से और ज़्यादा मजबूत होते जाते हैं। और दिन ब दिन, रोज़ बरोज़ खुदा ज़ोर के साथ मसा के साथ अपने लोगों से हम कलाम हो रहा है, अपने लोगों से बोल रहा है। तो खुदा का बंदा कहता है हम हिम्मत नहीं हारते, ऐसे ही चलेगा, बातें आएंगी, बातें जाएंगी, सारे मामले आएंगे, सारे मामले चलते रहेंगे, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारते क्योंकि हम जिसका काम करने वाले हैं, जिसका काम कर रहे हैं वो खुदा है और खुदा का रूह है, हम उसके मुताबिक चलते जा रहे हैं। आगे लिखा हुआ आखिरी बात करेंगे, क्योंकि हमारे दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज़ हद भारी और अबदी जलाल पैदा कर जाती है। जब हम मुश्किल में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, बातें होती हैं, तरह तरह की मुश्किलात आती हैं हमारे सामने, रुकावटें भी आती हैं, बच्चों के वसीला से, बाज़ दफ़ा बहनों भाइयों के वसीला से, बाज़ दफ़ा बहस भी हो जाती है, बाज़ दफ़ा लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन फिर भी हम उन सारी मुश्किलों को चीरते हुए अपने खुदा के हुक्म के मुताबिक उसकी रूह की आवाज़ के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, अज़ हद भारी जलाल खुदा का जलाल होता है, अज़ हद भारी खिदमत खुदा की ज़ाहिर। जब बेहद और भारी अबदी जलाल खुदा का ज़ाहिर होता है तो फिर क्या होता है, जिस हाल में कि हम देखी हुई चीज़ों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीज़ों पर नज़र करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीज़ों चांद रोज़ा हैं मगर अनदेखी चीज़ें अबदी हैं। देखी हुई चीज़ें दुनिया की चीज़ें हैं, देखी हुई चीज़ें घराने हैं, देखी हुई चीज़ें लोग हैं, रिश्ते हैं और हमारी ज़रूरतें हैं, देखी हुई चीज़ें दुनिया की बातें हैं, लेकिन अनदेखी चीज़ें हैं। पौलुस रसूल कहता है अभी तो हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन एक दिन आएगा कि हम उससे रूबरू देखेंगे। दुनिया की बातें चंद रोज़ा फानी हैं, ख़त्म हो जाने वाली हैं, अनकरीब जाने वाली हैं, अनकरीब हमारी ज़िंदगी से चली जाएंगी या हम चले जाएंगे। लेकिन अनदेखी चीज़ जो है, जो अबदी है, जो कभी ख़त्म नहीं होगी, जो कभी नहीं जाएगी, हमारे साथ हमेशा रहेगी, वो खुदा की बादशाही और यीशु मसीह है जो हमें अबदी वारिस बनाकर कहता है कि तुम मेरे साथ दुनिया का इंसाफ करो। वो अबदी है। हम उस पर गौर करते हैं, दुनिया की बातों पर गौर नहीं करते, हम उसकी सोच में हैं, हम उसकी तरफ जा रहे हैं, वो हमारी मंजिल है, हम उस निशान की तरफ दौड़े जाते हैं और उसी पर चलने के लिए हमेशा कायम रखें। आमीन आमीन। आए आंखों को बंद करें और सुने गए कलाम के मुताबिक, जैसा हमने सुना, जैसा हमने कलाम हासिल किया, उसी के मुताबिक अपनी टीम के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने खादमों के लिए, आप सब जिंदगियां, आप सब कलीसिया
زور اور قوت اور زیادہ مانگے تاکہ یہ ہمت نہ ہاریں اور چلتے رہیں اور بڑھتے رہیں اور کام کرتے رہیں اور خدا کے جلال کو ظاہر کرتے رہیں. آئیے اپنے لبوں کو کھولنا شروع کریں. ہاللویا، اللہ شکروں کے